डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा बर्थ कंट्रोल एंड एसटीडीज। बर्थ कंट्रोल मीन्स हाउ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। सेकंड, एसटीडीज मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो पहले बर्थ कंट्रोल इट्स एसेंशियल टू इंश्योर बर्थ कंट्रोल टू चेक द पॉपुलेशन growth. It can be done by preventing pregnancy in females. Actually, when the population grows, it will have effect on our resources. That means the resource should fulfill the demands of the population. So the population growth, it's controlled, it is taken into check, it's controlled by the birth controls and by using various methods to control the population growth in a country. The population growth is controlled by preventing the pregnancies in the females during the intercourse or during the sexual reproduction. The pregnancies is controlled, is prevented by various methods, so that the population can be taken under control or checked. So, birth control methods means the prevention of pregnancy in females by preventing fertilization. By preventing, it's called contraception. This preventing of the pregnancies in females, it's called the contraception. That means ये जो females में जो pregnancy control की जाती है by any of the methods, तो इस method को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं contraception. Any device or a drug which prevents pregnancy in women is called contraceptive. कोई भी ड्रग या कोई भी चीज़ जो इस्तेमाल की जाती है जिससे प्रेगनेंसीज कंट्रोल की जाती है, प्रिवेंट की जाती है, उसको हम बोलते हैं कंट्रासेप्टिव। और इस प्रोसेस फिनोमेना को हम बोलते हैं कंट्रासेप्शन। और इस ड्रग या जो भी मेथड यूज़ किया जाएगा उसको बोलते हैं हम कंट्रासेप्टिव। ऑल द बर्थ कंट्रोल मेथड्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन थ्री कैट देयर आर थ्री कैटेगरी। तीन तरह के होते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड्स या कंट्रासेप्शन, जैसे बर्थ प्रेगनेंसी कंट्रोल होती है, प्रिवेंट होती है। ये जो मेथड्स इसमें यूज़ होते हैं ये तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट मेथड जो इसमें आता है उसे हम बैरियर मेथड कहते हैं। इन द बैरियर मेथड द फिजिकल डिवाइसेस सच एज condoms and diaphragm cap are used. Condoms are used by males while a diaphragm is used by the female. So प्रेगनेंसी कंट्रोल करने के लिए बैरियर मेथड का भी इस्तेमाल किया जाए। बैरियर मेथड से दीज आर एक्चुअली द फिजिकल डिवाइस। ये फिजिकल डिवाइस होते हैं जहाँ पे जैसे condoms है, diaphragm या कैप्स होते हैं, तो ये यूज़ किए जाते हैं टू चेक टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी इन द फीमेल्स. So condoms are mostly used by the males to prevent the sperm cells to get fused with the egg cells. Or a diaphragm cap is also used by the females to prevent the fusion of sperm cells with the egg cells, कि जिससे sperm cell egg cell के साथ fuse ना हो जाए, fertilization ना हो जाए, तो so that pregnancy can be prevented. So यहाँ पे barrier method या तो condoms यूज़ या diaphragm यूज़ किया जाता है. So this very method is called the barrier method. Second method is the chemical method. Chemical method females use two types of pills. So यहाँ पे दो तरह के pills यूज़ की जाते हैं. एक तो oral pills and second is known as the vaginal pills. The oral pills contain hormones which stop the ovary from releasing ovum into the oviduct. तो यहाँ पे को जो oral pills होते हैं, oral pills जो माउथ से ली जाती है oral pill, तो इनसे क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स जो होते हैं, इसमें कुछ हार्मोन्स मौजूद होते हैं जिनसे ओवरीज स्टॉप करते, ओवरीज ये एग सेल्स रिलीज़ नहीं करते। ओवरीज जब एग सेल रिलीज़ करेंगे इनटू ओविडक्ट तो फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, लेकिन ये जो ओवरीज होते हैं वो एग सेल रिलीज़ नहीं करते, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होती और प्रिवेंट होती है प्रेगनेंसी। तो इन पिल्स को हम बोलते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव मैंने आपको पहले भी बताया, जो भी ड्रग जो भी मेथड यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन उसको बोलते हैं कंट्रासेप्टिव। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं कंट्रासेप्शन। तो यहाँ पे जो पिल्स ली जाती है ओरल से बाय द माउथ, तो इट्स थ्रू माउथ, इज कॉल्ड द ओरल कंट्रासेप्टिव. The vaginal pills contain the chemicals called spermicides which kill the sperms. तो vaginal pills जो होते हैं जो थ्रू vaginal यूज़ की जाती है वो pills, so they are contain a chemical called the spermicides. Spermicides बोलते हैं, spermicides means तो वो chemical है जिनसे sperm cells kill होती है. तो यहाँ पे ये sperm cells sperms को kill करने के लिए यूज़ की जाती है pills जिनको हम बोलते हैं spermicides, so that sperms are not able to fertilize with the egg cell, ताकि sperm cell जो होंगे वो egg cell के साथ fertilization ना कर सके. तो थर्ड जो यहाँ पे आता है, इससे हम ये जो इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस है, द यूज ऑफ इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस कॉल्ड कॉपर टी इज ऑल्सो यूज वेरी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी. कॉपर टी प्ले इनसाइड द डॉक्टर बाय डॉक्टर. द कॉपर टी प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन एग इन यूट्रस. तो एक्चुअली
एक्चुअली जिस वक्त यहाँ यूट्रस में फर्टिलाइजेशन जब होती है तो यूट्रस में इम्प्लांटेशन होती है, जब यहाँ पे फीटस रहता है, इफ जाइगोट बनता है या एम्ब्रियो बन जाता है, वो यहाँ पे रहता है फिर फीटस। तो एक्चुअली वो इम्प्लांटेशन प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे कॉपर टीज का यूज़ किया जाता है। इस कॉपर टीज से ये प्रिवेंट करता है एग सेल को यहाँ पे यूट्रस में रहने से। तो यहाँ पे एग सेल फिर नहीं रहते हैं यूट्रस में, तो इससे प्रिवेंट होती है प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे फिर आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड्स जो है हम आते हैं जो थ्रू सर्जरीज यूज़ की जाती हैं। इन मेल्स स्मॉल पोर्शन ऑफ स्मॉल डक्ट वैसा डिफरेंस इज रिमूव बाय सर्जिकल एंड बोथ एंड्स आर लाइगेटेड। तो यहाँ पे ये मेल्स में हम लेते हैं वो ये वैसा डिफरेंस कट करते हैं वहाँ से, तो फिर उसको टाई करते हैं विद नॉट, तो उससे बोलते हैं वैसेक्टोमी। और फीमेल्स में हम क्या करते हैं, फीमेल्स में यहाँ पे ये जो ओविडक्ट्स होते हैं, ये ओविडक्ट्स इसको यहाँ पे रिमूव किया जाता है, ओविडक्ट्स को यहाँ पे रिमूव किया जाता है, तो इसको फिर लाइगेट किया जा बंद किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टमी। इट प्रिवेंट्स द रिलीजिंग ऑफ द एग सेल इनटू द यूट्रस, ताकि यूट्रस में ये एग सेल ना आ सके। तो उसके बाद है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। ये थी बर्थ कंट्रोल मेथड्स, एक तो फिजिकल मेथड, केमिकल और सर्जिकल मेथड। उसके बाद आता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज 3 तरह के आते हैं। गोनोरिया आता है, गोनोरिया, सेकंड आता है साइफिल्स एंड थर्ड होता है एड्स आते हैं यहाँ पे। गोनोरिया एंड साइफिल्स जो है देर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया विच सेपरेट थ्रू सेक्सुअल। ये बैक्टीरिया से होता है ये डिजीज। तो इनसे सिम्टम्स क्या आते हैं कि बर्निंग एट द यूरिन, सेंसेशन एट यूरिनेशन, यूरिनेशन पॉइंट पे यहाँ से ड्यूरिंग द यूरिन एंड थोड़ी बर्निंग होती है, जलन होती है। सेकंड पासिंग ऑफ यूरिथ्रल डिस्चार्ज एंड सोर्स जेनेटियल, जो जेनेटियल एरिया जो होता है यहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ा सोर्स कुछ दाने निकलते हैं, सोर्स होते हैं वहाँ पे, रेडनेस होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, सो बिकॉज ऑफ दिस साइफिल्स या गोनोरिया। एंड एड्स जो है, एड्स वायरल डिजीज़ है, देयर इज नो, लेकिन जो गोनोरिया साइफिल्स है ये क्यूरेबल है, ये ठीक हो सकते हैं। लेकिन जो एड्स डिजीज़ है ये इट इज़ कॉल्ड बाय HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो आता है इसमें। तो ये जो एड्स होते हैं इसका कोई क्योर नहीं है, तो सो फार तो इट रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल, इस इंडिविजुअल की डेथ होती है। दीज आर ऑल कॉज बाय द थ्रू सेक्सुअली कॉन्टैक्ट, थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये चीज़ होती है, डिजीज़ होती है।